Now we'll talk of more questions on area, surface and surface area and volume. So the first question is, a wooden toy is in the shape of a cone mounted on a cylinder. तो एक हमारे पास सिलेंडर है, let's say this is our cylinder and let's say this is our cylinder and there is a cone which is mounted on it. So let's say we have a cone which is mounted on this. ठीक है, ये हमारा इस पे कोन माउंटेड है. द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 26. तो जो टोटल हाइट ऑफ द टॉय है दैट इज 26 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6. तो हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट क्या है? 6 सेंटीमीटर. ठीक है. द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 5 सेंटीमीटर. यानी ये वाला पार्ट, रादर दिस पार्ट इज 5/2 क्योंकि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोनिकल पार्ट, इफ दिस इज योर कोनिकल पार्ट, द डायमीटर इज 5, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 5/2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, and that of the cylindrical part is 4. The diameter of the cylindrical part is 4 centimeter. So let's say we write radius of cylinder as r, which is 2 centimeter, and radius of cone, let's say radius of the cone is, let's say capital R, and this is 5/2 centimeter. Height of cone is given to be, let's say h, which is 6 centimeter, and height of cylinder. अब ये हम कैसे निकालेंगे? We are given the total height 26, उसमें से conical height हटा दें, तो this is 20 centimeter. Now, what does he say? The conical and the cylindrical parts are painted red and white. तो जो conical part है, that is being painted red, उसको लाल रंग से हमने पेंट करा है. ठीक है. And जो cylindrical part है, that is white. तो इट इज सेइंग फाइंड द एरिया ऑफ ईच पेंटेड पार्ट. हर पेंटेड पार्ट का एरिया निकालना है. मतलब कोनिकल जो रेड कलर का पेंट करा है वो कितना एरिया है और जो व्हाइट है वो कितना एरिया है. ठीक है. तो एरिया ऑफ द रेड पार्ट इज व्हाट? एरिया ऑफ द रेड पार्ट, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये हमारा कोन है, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज CSA प्लस मोर इंपॉर्टेंटली जो कोन का नीचे वाला पार्ट है दैट इज सर्कुलर, उसमें से ये जो पार्ट है दैट इज बीइंग टेकन बाय द सिलेंडर. ये तो सिलेंडर से कवर हो गया, लेकिन ये पार्ट तो ओपन है, ये वाला, विच इज व्हाट? जो नीचे वाला पार्ट है कोन का, ये वाला पार्ट. तो जहां से सिलेंड्रिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है उसको छोड़ दें, बाकी पोर्शन तो रेड हमने पेंट कर सकते हैं कोनिकल में. Therefore, this area would be what? This area would be area of ring, that is pi r square minus r square. तो रेड कलर से जो एरिया निकालना है वो that will be this much. Similarly, the area of the white part. Area of the white part is what? Curved surface area of the cylinder, that is 2 pi rh plus ये जो बॉटम है, बिकॉज दिस इज अ सॉलिड टॉय, तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. बस इनमें वैल्यूज अब हमको रख देनी है. तो एरिया ऑफ द रेड पार्ट क्या होगा? लेट्स यूज रेड कलर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई, विल यूज कैपिटल आर इन दिस केस बिकॉज उसका रेडियस आर है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. नाउ वी डोंट नो एल, तो एल क्या होगा? एल वुड बी the height of the cone square plus radius of the cone. So what is height of the cone? 6, that is 36, plus what is radius of the cone? Radius of the cone is 5/2, yani 25/4. This gives you 144 plus 25, 169/4, which is 13/2 centimeter. ठीक है. तो जो फर्स्ट पार्ट है वो कैसे आएगा? पाई is 22/7, radius of the conical part is 5/2, L is 13/2 plus 22/7 into r square कितना हो गया? 5/2 का होल स्क्वायर विच इज 25/4 माइनस रेडियस इज 2 यानी
4. So we can take 22 by 7 out, and this becomes the 65 by 4 plus this is 4 4 the 16. 25 minus 16 is 9 by 4. This gives you 22 by 7 into 74 by 4. So 2 and 11. 11 4s are 44. 11 7 is 77 and 4 81 by 14 by 14. तो ये 2 से फिर चला जाएगा. 2 7s are 2 4s are 8 0 7. So this gives you 7 5s are 35. 7 8 56. 1.1. This much centimeter square. तो ये क्या आया? This is your area of the red part. Similarly, area of the white part कितना हो जाएगा? 2 into what is pi? 22 by 7 into radius of the cylindrical part is 2 into height is 20 plus 22 by 7 into 2 into 2. तो 22 by 7 we can take out. तो क्या हो जाएगा? 22 is 42 is 80 plus 4. तो 22 by 7 into 84. 7 1s are 7 12s are 12 2s are 24. 12 2s are 24 and 2 26 centimeter square. तो जो व्हाइट पार्ट है उसका एरिया कितना आया है? 264 सेंटीमीटर स्क्वायर. और जो रेड पार्ट आया है उसका एरिया क्या है? 58.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now let's take the next question. It says a toy is in the shape of a cylinder with a hemisphere on one end and a cone on the other end. The radius and height of the cylindrical part is 5 and 13 centimeter respectively. The radii of the hemispherical and conical parts are same as that of the cylindrical part. Find the surface area of the toy if the total height is 30. ठीक है. तो let's say we have a toy और एक हमारा एक cylindrical part है and then we have a conical part at the top and let's say then there is a hemispherical part at the other end. ठीक है. This is your toy. ठीक है. The total height of the toy is 30. So this length is 30. This is given to be 30 centimeter. Now radius दोनों का सेम है. इनफैक्ट तीनों का सेम है. कोन का, सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का. ठीक है. तो द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 5 and 13. तो ये 5 हो गया एंड दिस पार्ट इज 13. नाउ वी ऑलरेडी नो ये भी 5 होगा. तो वी नो दैट द डेप्थ ऑफ द हेमिस्फीयर इज सेम एज इट्स रेडियस. ये दोनों लेंथ सेम होंगी तो ये लेंथ भी कितनी हो गई? 5. देयरफॉर हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट क्या होगा? Height of the conical part would be total length minus 13 minus 5, that is 12 centimeter. तो ये लेंथ हमारी कितनी आ गई? Height of the cone is 12 centimeter. ठीक है. So now we know everything. तो we have to find the surface area of the toy. The surface area of the toy, surface area of the toy is equal to what? The curved surface area of cone, ये वाला पार्ट, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. ठीक है. बट द ओनली थिंग वी डोंट नो इज द स्लांट हाइट. तो फॉर एल व्हाट विल यूज? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो एच कितना है? 12 यानी 144 प्लस आर क्या है? 5 यानी 25. तो दिस इज 169 विच इज 13 सेंटीमीटर. ये लेंथ कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर. नाउ वी विल हैव टू जस्ट यूज द फॉर्मूलाज. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? पाई आर एल प्लस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई, सेम आर यूज करेंगे, हाइट एच, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ द हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. बस वैल्यूज प्लग इन करनी है. आर हमारा क्या है? 5. हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 13. स्लांट हाइट इज ऑल्सो 13. बस. तो पाई इज कॉमन, आर इज कॉमन. वी कैन टेक एल प्लस 2h प्लस
2r, ठीक है. तो दिस इज 22/7 इंटू रेडियस इज 5, L is 13, 2 into h which is 26 plus 2 into r which is 10. So this gives you 22/7 into 5, and this is 39 and into 10, 49. 7 sevens are, so 110 into 7 which is 770 centimeter square. Yani surface area of the toy is 770 centimeter square. Now we take the next question. It says from a cubical piece of wood of side 21 centimeter a hemisphere is carved out. मतलब उसमें से काट के निकाल लिया. In such a way that the diameter of the hemisphere is equal to the side of the cubical piece. और diameter of hemisphere क्या है? जितना साइड का लेंथ है. Find the surface area and volume of the remaining piece. ठीक है. Let's draw the cube first, and then we'll have a cube. Let's say ये हमारा cube है. Let's say this is our cube. So we have carved out a hemisphere. We have carved out a hemisphere. This is our hemisphere. इसमें से हमने एक हेमिस्फीयर कार्व आउट किया है which has a diameter which is same as that of the side of the cube. तो side of the cube 21 है. तो therefore what we'll do is कि वॉल्यूम तो बहुत आसान है. वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड would be वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. अब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? दैट विल बी 21/2, क्योंकि साइड की लेंथ के बराबर उसका डायमीटर है. तो बस वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? ए क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब. ए क्या है? ए इज 21 साइड लेंथ. तो वील पुट दीज वैल्यूज टू 21 का क्यूब माइनस 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब. आर क्यूब क्या है? 21 क्यूब अपॉन 2 क्यूब विच इज 8. तो वी कैन टेक 21 क्यूब आउट. तो ब्रैकेट में क्या बचा? 1 माइनस दिस बिकम्स 2 1s 2 4s 2 2s 2 11s. तो दिस गिव्स यू 11 अपॉन 7 3s 21 2s 42. तो दिस गिव्स यू 21 क्यूब minus we'll have 21 cube 1 and 42 minus 11 is 31/42. ठीक है. तो we can write this as 21 into 21 into 21 into 31/42. So this gives you 21 2s 21 1s 21 2s. So this gives you 441 into 31/2. So 441 into 31 gives you 144. 3 1s 3, 3 4s 12, 3 4s 12 and 1 13, which is 1 7 6 3 1 divided by 2. 2 6s 12, 2 8s 16, 2 3s 6, 2 5s 10.5. Therefore the volume is 6835.5 सेंटीमीटर क्यूब. तो जो बच गया वॉल्यूम उस सॉलिड का, उसका क्या वैल्यू है? 6835.5 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. नाउ यू विल हैव टू इमेजिन अ लिटिल बिट. जब हम इसमें से ये हेमिस्फीयर बाहर निकाल लेंगे तो अंदर तो पार्ट कैविटी हो गई, पर कौन सा एरिया हमारा रह गया? इफ वी लुक क्लोजली, हमारे 5 फेसेस तो एज इट इज है क्यूब के. ये वाले फेसेस हमारे 5, जो ओनली डिफरेंस विल कम इन द टॉप फेस, क्योंकि यहां से जब हमने हेमिस्फीयर निकाला है तो ये कैविटी बन गई है. तो 5 फेसेस का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ 5 फेसेस प्लस जो अंदर की कैविटी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर. और जो हेमिस्फीयर है उसका कौन सा एरिया आएगा? कर्व सरफेस आएगा. यानी
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो अंदर कैविटी बनी है वो, प्लस टॉप का जो ये वाला पोर्शन है, जो टॉप पोर्शन ऑफ द क्यूब है, इसमें से तो ये कैविटी हमने बाहर कर ली है हेमिस्फीयर की, तो कौन सा एरिया बचेगा? ये वाला एरिया, दिस एरिया, एंड दिस एरिया इज व्हाट? a square, which is the area of the square minus pi r square, this area, if this is r. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आपका ये हो जाएगा. व्हाट इज द एरिया ऑफ 5 फेसेस? हर फेस का एरिया a स्क्वायर होता है, तो 5 फेसेस का एरिया क्या होगा? 5a स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? 2/3 और अदर 2 pi r square, that is 2 pi r square plus a square minus pi r square. So this gives you 6a square plus pi r square. बस वैल्यूज प्लग इन करिए. 6 इंटू a क्या है? 21 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू रेडियस क्या है? 21 का स्क्वायर अपॉन 4. तो 2 जा 2, 11 जा 21 स्क्वायर वी कैन टेक आउट. तो 6 प्लस 11/14, 14 6 जा 84 and 11. 21 square into 95/14. Now this gives you 21 into 21 into 95/14. 7 2s are 7 3s are. Therefore we have 95 into 63. 3 5s are 15, 3 9s are 27, 128, and 6 5s are 30, 6 9s are 54, and 3 57. 5 8 9 5, and we have to divide this by 2. So 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 9s are 18, 2 2s are 4.5 centimeter square. Therefore area of the remaining solid is 2992.5 centimeter square. इसमें बस आपको ये चीज इमेजिन करनी थी कि आफ्टर रिमूविंग द हेमिस्फीयर क्या क्या एरिया बचेगा. तो 5 फेसेस बचेंगे. बस जो डिफरेंस आएगा वो टॉप के फेस में आएगा, क्योंकि टॉप के फेस से कैविटी बन गई है. तो उसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ द सर्कल. और अंदर की कैविटी किस फॉर्म में होगी? वो हेमिस्फीयर के फॉर्म में होगी. तो हेमिस्फीयर का क्या ले लेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेंगे हम. ठीक है. नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज we are given that the volumes of 2 cones are in the ratio 1:4. 2 कोन्स दिए हैं और उनका वॉल्यूम का रेशियो दिया है. एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिए, बस उनके रेशियो दिए. एंड देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो 4:5 और उनके डायमीटर्स का रेशियो दिया है. यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स. तो ठीक है, लेट्स से वी हैव दिस इज योर फर्स्ट कोन एंड लेट्स से दिस इज योर सेकंड कोन. ये आपका फर्स्ट कोन है एंड लेट्स से ये सेकेंड कोन है. तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गिवन एनीथिंग. ना हमको पहले कोन की हाइट और रेडियस पता है, ना सेकेंड कोन की हाइट और रेडियस पता है. तो लेट अस अज्यूम द रेडियस ऑफ द फर्स्ट कोन बी r1, रेडियस ऑफ द सेकेंड कोन बी r2, हाइट ऑफ द फर्स्ट कोन इज h1, हाइट ऑफ द सेकेंड कोन इज h2. तो व्हाट इज गिवन टू अस? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन, दैट इज गिवन टू बी 1/4. तो ऑब्वियसली वॉल्यूम गिवन है तो हम फॉर्मूले लगा सकते हैं वॉल्यूम के. तो पहले कोन का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1, उसकी रेडियस r1 है, हाइट h1 है. और सेकेंड का वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h2, उसका रेडियस r2 और हाइट h2 है. तो 1/3 पाई कैंसिल हो गया. 1/4 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2, विच कैन बी रिटन एज r1 अपॉन r2 का whole square into h1 upon h2. Now the second information given is उनके diameters का ratio 4:5 है, that is d1 upon d2. d for diameter, तो d1 upon d2 क्या है? 4/5. लेकिन what is diameter? Diameter is twice of radius. तो d1 पहले का diameter, तो उसका radius के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? 2r1. ऐसे ही 2r2 सेकेंड का diameter हो गया 4/5. तो 2 से 2 कैंसिल, r1 अपॉन r2 की वैल्यू क्या आ गई? 4:5. वो हम वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेंगे. तो 1/4 r1 अपॉन r2 की जगह 4/5 का होल स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2. तो h1 अपॉन h2 की वैल्यू क्या आएगी? 1/4 और ये हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड पे, हो जाएगा 25/16. तो देयरफॉर 25:16.
64। यही हमको निकालना था रेशियो ऑफ हाइट्स। तो रेशियो ऑफ हाइट्स क्या आ गया, H1:H2 क्या है 25:64। ठीक, ऐसे ही अगर वो सरफेस एरिया का रेशियो देता तो हम यहाँ सरफेस एरिया के फॉर्मुलेस लगा देते, फिर हमको कोई ना कोई रेशियो मिलता और जो चीज पूछता वो हम निकाल देते। तो फॉर्मुलों पे आपको बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि फॉर्मुले आपको बाय हार्ट होने चाहिए। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। We are given that a toy is in the shape of a cone surmounted on a hemisphere of the same base radius. ठीक है, तो let's say we have a cone which is surmounted on a hemisphere. ठीक है, which is surmounted on a hemisphere of the same base radius. ये उसकी हाइट हो गई कोन की। If the volume of the cone is 231 सेंटीमीटर क्यूब, तो यानी वॉल्यूम ऑफ रादर टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय तो पूरे टॉय का वॉल्यूम दे दिया 231 सेंटीमीटर क्यूब, एंड द डायमीटर इज 7। तो अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो गया 7/2। रेडियस इज 7/2 दोनों ही स्ट्रक्चर्स का, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी। तो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय। ना हाइट ऑफ द टॉय इज द टोटल हाइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहां से लेके यहां तक, दिस इज योर हाइट। तो इसमें क्या हो, एक चीज तो हमें पता है कि हेमिस्फीयर की जो डेप्थ होती है दिस इज सेम एज इट्स रेडियस, तो ये तो 7/2 हो ही गया। तो अगर मुझे ये हाइट ऑफ कोन पता लग जाए तो टोटल हाइट पता लग जाएगी। तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ कोन बी h, ये h मान ली। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज सिंपली वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r²h, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई r³। r दोनों का सेम है, हाइट हमको पता नहीं है, बट इस टोटल वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 231। तो ठीक है, 231 इज इक्वल टू, वी कैन टेक π/3 आउट, r² भी आउट, तो वी हैव h प्लस 2r। ठीक है, तो व्हाट वी जस्ट हैव टू पुट इन द वैल्यूज, 231 इज इक्वल टू 22/7 इंटू r² क्या है 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट पता नहीं 2 इंटू 7/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 11 टाइम्स, 11 2s are 22, 1 11 1s are 11, 7 1s are 7 3s are, तो ये हो गया, ये कितना आ गया 3 2s are 6 is equal to h plus 7। We have made a mistake, ये 3 हम लोग का और आएगा यहाँ पे, तो this would be 3 2s are 6, 3s are 18, तो h comes out to be 11 सेंटीमीटर। और यही हमको निकालना था, ये वाला पार्ट h was 11 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट कितनी हो गई h प्लस ये वाली लेंथ which is 7/2, तो 11 प्लस 3.5, therefore height of the toy is 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है, now let's take the next question. Now the question says a military tent of height 8.25 meters is in the form of a right circular cylinder of base diameter 30 meters and height 5.5 meter surmounted by a right circular cone of the same base radius। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, एक टेंट बना लें। तो एक सिलेंडर है और उसके ऊपर राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, तो दिस इज योर सिलेंड्रिकल पार्ट और उसके ऊपर कोनिकल पार्ट है, इस शेप का टेंट है। तो टोटल हाइट ऑफ द टेंट कितनी दी है 8.25 मीटर्स। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट क्या है 5.5 मीटर्स, और जो दोनों की रेडियस है वो कितनी आ जाएगी 30 मीटर्स डायमीटर दिया, यानी 15 मीटर्स ईच। ठीक है,
तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट इफ द ब्रेथ ऑफ द कैनवस इज 1 पॉइंट और रादर दिस शुड बी लेंथ. फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड इफ द ब्रेथ ऑफ द कैनवस इज 1.5. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, टोटल एरिया निकाल लें. द टोटल एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड क्या होगा, टोटल कैनवस कहां कहां लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. क्योंकि बेस पे तो हम लोग कभी भी टेंट में नहीं बिछाते हैं, टेंट को बनाने के लिए खाली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो फॉर्मुलेज यूज कर लें. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच. आर दोनों का सेम है. एच हमारा क्या है, वी कैन राइट द वैल्यूज. एच क्या है 5.5 मीटर्स और एल हमें निकालना पड़ेगा. तो ये हाइट हमको पता नहीं है अभी एंड ये तो 15 है. तो ये लेंथ कितनी आएगी, दिस लेंथ वुड बी 8.25 minus 5.5, that is length of, rather height of conical part, height of conical part कितना होगा, 8.25 minus 5.5, तो 2.75 मीटर्स. ये लेंथ कितनी आ गई, 2.75 मीटर्स. तो L निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. तो L वुड बी √h² प्लस r². ठीक है, तो h कितना है हमारा 2.75. 2.75 को वी कैन राइट 275/100. तो 25 1 जा 25, 25 1 जा 25 4 जा, यानी 121/16 प्लस रेडियस कितना है 15 यानी 225. तो दिस गिव यू 16 5 जा 80, 16 2 जा 32 and 8 40, 16 2 जा 32 and 4 36 plus 121. So this is 1273. तो चेक करिए ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, दिस वुड बी 3721. 3600 के बाद आखिरी में 1 है तो 61 का ट्राई कर लीजिए. 61 इंटू 61 16, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1 6 12. यस, तो ये किसका अंडर रूट हो गया 61 मीटर्स. तो अब हमारा लेंथ भी आ गया. तो बस अब वैल्यूज हम रख दें. तो वैल्यूज क्या आएंगी, लेट्स से वी गेट रिड ऑफ दिस. तो लेट्स से वी गेट रिड ऑफ दिस. तो ये हम हटा ले रहे हैं जिससे क्लीन हो जाए. तो वैल्यूज रखेंगे. पाई इज 22/7, आर कितना है 15 एंड एल क्या आया है 61 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 15 इंटू हाइट क्या है 5.5 विच इज 11/2. तो 22/7 बाहर कर लें, 15 भी बाहर कर लें, तो वी आर लेफ्ट विथ 61 प्लस 22/7 इंटू 15 बाहर हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 11 आ गया. तो दिस गिव्स यू 15 इंटू 22/7 इंटू 72, दिस मच मीटर स्क्वायर. अब जो हमारा क्लॉथ होता है वो किस तरीके शेप में होता है, इस तरीके का रोल होता है और ऐसे उसको खोल देते हैं. तो जो विड्थ ऑफ द क्लॉथ है वो क्या दे रखी है, दैट इज 1.5 मीटर्स. 1.5 मीटर्स. तो जितनी लेंथ हम इसमें से काटेंगे ये उसका एरिया बन जाएगा. तो कह रहा है कितनी लेंथ ऑफ क्लॉथ हमको चाहिए. तो ठीक है, इतना एरिया हमको रिक्वायर्ड है टेंट बनाने में, उसको किससे डिवाइड कर दें, ये ब्रेथ से. मतलब दिस एरिया रिक्वायर्ड इज व्हाट, दिस वैल्यू. तो इसको अगर 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा. तो लेंथ ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड इज 15 इंटू 22 इंटू 72
अपॉन 7 इंटू 1.5 विच इज 3/2, तो 3 1 जा 3 5 जा, तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 इंटू 22 इंटू 72/7 मीटर्स। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 22 इंटू 72, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 4 4 1 4 8 5 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 14, 1 8 7 2 जा 14, 4 and 4 7 6 42, 2 0 7 2 जा 14, 6.078 56, यानी 2262.8 मीटर्स ऑफ कैनवस इज रिक्वायर्ड। अगर अप्रोक्सीमेट करना चाहे तो दिस इज 2263 मीटर्स। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 14 centimeter and base diameter 7, two equal conical holes each of radius 2.1 and height 4 centimeter is cut off. Find the volume of the remaining solid. सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक सिलेंडर बना लिया। ठीक है, ये हमारा लेट से सिलेंडर है और डायमेंशंस ऑफ द सिलेंडर क्या गिवन है, the height is 14 centimeter and the base diameter is 7, यानी रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर। इसमें से हमने दो कोनिकल होल्स काट लिए जिनकी रेडियस 2.1 है। लेट्स से ये पार्ट हमने काट लिया एंड लेट्स से यहां से ऐसे काट लिया, तो इनकी रेडियस क्या है इसकी 2.1 सेंटीमीटर और डेप्थ क्या है 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, और दोनों कोन्स का वॉल्यूम तो सेम है क्योंकि डायमेंशन सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई r² h माइनस ट्वाइस इंटू 1/3 पाई r² इंटू एच। ये वॉल्यूम ऑफ कोन है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। तो कैपिटल एच क्या है 14 सेंटीमीटर, कैपिटल आर क्या है 7/2 सेंटीमीटर, स्मॉल आर क्या है 2.1 सेंटीमीटर, स्मॉल एच क्या है 4 सेंटीमीटर। बस वैल्यूज रख देंगे इसको, तो क्या आएगा, पाई कॉमन हो गया 22/7, रेडियस का स्क्वायर कितना हो गया 49/4 इंटू हाइट क्या है 14 माइनस 2/3 इंटू रेडियस क्या है 2.1 यानी 21/10 और 21/10 और हाइट क्या है 4। तो 2 2 जा 2 7 जा एंड 3 1 जा 3 7 जा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 49 इंटू 7 7 9 63 7 4 20 343 माइनस 7 2 जा 14 4 जा 56 इंटू 21 5 6 2 1 1, तो दिस गिव्स यू 6 7 1 1 1176 अपॉन 100 इंटू 22/7। तो दिस विल गिव यू 343001176। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 3 3 डिवाइडेड बाय 100 एंड इंटू 22/7। तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 84266 84266 812 7827। तो 728 डिवाइडेड बाय 700 1 टाइम्स, तो 28 7 कैरी करा, ये तो जाएगा नहीं तो 0 करा, 2 7 4 जा 28, तो 72 8 कैरी 1 700 28 विल पुट अ पॉइंट 0 रखा तो 4। तो द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज 1041.04
सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल के वॉल्यूम ऑफ 2 कोन सब्ट्रैक्ट करना था बस, और सब डायमेंशंस हमको दे ही रखे थे।